अब इनको बुलाना है ना यहाँ से. ओके. ऐसे नहीं होगा. हाँ तो. मैसेज. ओके. क्यों हो रहा है? Hi, can you hear me? Yeah, I can hear you, sir. Yeah, now I can see you. Sorry, sir. Oh, good. There was some technical problem. Yeah. It's always the case with these technical things, yeah. Great. So, Rohit from Texas. Yeah, that's the thing, yeah. So, how are you, sir? Fine? Good, yes. What are you doing? In Mumbai. Busy? Yeah. Nowadays, we are more busy than earlier. Right. Yeah. And- Because we're learning to structure our time a little better now. Yeah. Yeah. It's Hi, take a Kirti. pause. Yeah. Kirti is also there. Yeah. Okay. Yeah. So, sir, people are joining, I think, because we are late. Means I am late, not you. But that's why, due to some confusion, they are slowly joining. I got several messages also. Have you started like that? So they are slowly good. joining. Yeah. So I would like Great, to say great. hello to everyone, and from Mahesh sir also hello to everyone. And today we have Mahesh sir with us. He is the we can say most powerful voice of Indian English literature, especially in drama. Am I right, sir? Don't expect me to say yes. No. Well, I don't know. Monam Srikriptisya Lakshanam. That is the thing. Well, yes. Sir, main thing, I have heard you saying several times that restricted to one language is a problematic thing. So that's why in our group means I am doing Hindi theatre. You are from English theatre. I know I am doing Hindi theatre, and most of the people are joining with me. They are also Hindi, and rather we can say English theatre. So if you permit, then I will speak in mixed language. So. Sure. Even if you speak in Hindi, it's fine. I can understand it, and I try to speak a little bit, but mine is going to be like a mix of Hindi and English then. I know. And your Hindi is very sweet. Because I have heard in class, no? I have heard it in class, no? Well, the thing is, I learned Hindi very late. It's only after moving to Mumbai 10 years ago that I started speaking Hindi. And before that, I only knew Hindi through Bollywood films, because in Bangalore, nobody spoke Hindi. So it was a little bit of a challenge to learn the language after I moved to Bombay. But I try very hard, as you know, to speak it. Yeah. So mixture of Hindi, English, and whatever. Means what we can easily understand, and what my students and audience and others can easily get it. Yeah, sure. And if anyone doesn't understand anything, they can just send a message saying, could you clarify that? And I'll be happy to sort of try and make things a little more clear. Okay. Yeah. And I would like to tell everyone that this is more or less a question answer session. Mahesh sir is here, and he has already asked me that more and more questions are welcome. Okay. So, sir, first of all, I would like to tell them that this is on the aspects of literature writing or presentation. This session is based on this. Means drama is a drama plus drama in books and drama for the purpose of performance. These are two different things what I have learned from you. Right. Well, I think the purpose of drama is performance. And that is why I no longer call it playwriting. I call it writing for performance. Because writing in the theatre
has changed. And as you know, even the term theater, the lines between what is considered movement, dance, and music and drama. We're going back to the tradition that it's integrating. The lines are blurred, so you can have a very interesting theatrical piece, which could sort of originate from dance rather than from the spoken word. So I think writing for performance is more inclusive than to say playwriting, because not all plays are dialogue driven anymore. So you could write a play with elaborate sort of scenarios with no spoken dialogue at all. It is possible to do that nowadays. It's very fluid. Yeah. So, sir, we have come to know that you are a trained Western ballet dancer plus अच्छा, you've got Bharatanatyam a dancer. request saying, ma'am, Hindi में बात करिए, please. तो आप हिंदी में बोलिए, I'll try to. Yes. Yeah. Okay, Gaurav is from our theatre appreciation course, sir, from NST. He has joined from here. Yes. Oh, hi, Gaurav. Lucknow. Yeah. Sir, that's why he has written कि मैम हिंदी में कीजिए. Okay, sir. हाँ जी. So आप वेस्टर्न बैले ट्रेन डांसर हैं प्लस भरतनाट्यम के भी डांसर हैं, तो उस वजह से डांस लाइक अ मैन वहां से आपको एक इग्नाइट मिला करने के लिए. बिल्कुल सही. हाँ. मेरे गुरुजी थे श्रीमती चंद्रभागा देवी एंड श्री यूएस कृष्ण राव. वो बहुत ही एक क्लासिकल से जुड़े हुए थे. They learned directly from the Tanjavur teachers, श्री किट्टप्पा पिल्ले. तो उन्होंने मुझे सिखाया कि जो हमारे जो जड़ है आर्ट्स की, जिसमें जैसे कि भरतनाट्यम है, that is quite close to the prerequisites of the Natya Shastra. So studying, although I did not become a dancer because I started very late, लेकिन जो मैंने भरतनाट्यम मेरे गुरुजी से सीखा है, it changed my perspective completely. क्योंकि मेरा जो एजुकेशन था कॉन्वेंट स्कूल में, हम इंडियन नाटककारों को पढ़ते नहीं थे. I did not know Karnad or Kambar or Shivram Karant, or all these names were not mentioned in our school. And so it was very much Yeats and Keats and Shakespeare and Dickens, Eliot. That was my starting point. But very soon after I joined Bharatanatyam, I started to learn Bharatanatyam, I realized how limited my perspective was. That art has to be connected with who you are. It cannot be acquired. You can't acquire a culture. It has to come from a root. So the question is, what are my roots then? And I think being a little rootless is the honest origin, my honest origin. कि मेरी जो जड़ है वो बिना जड़ की है. Right? So इसका मतलब है my rootlessness then becomes my roots. So that was my starting point, and I agree that limiting yourself to one language is a disadvantage, especially in today's world where we're all globally interactive. जैसे कि आप मेरे साथ बात कर रहे हैं हिंदी में और मैं जवाब दे रहा हूँ इंग्लिश में, या आप इंग्लिश में पूछेंगे, मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ जवाब देने के लिए. तो ये 2 या 3 भाषा जानना बहुत जरूरी है. और हम नाटककार जो है, अगर हम सही तरह से हमारी जो कंटेम्पररी संस्कृति है उन पर आईना दिखाना है, तो वी आर मल्टीलिंगुअल. के अर्बन एरियाज में हम
हिंदी इंग्लिश या कन्नड़ा इंग्लिश या मराठी इंग्लिश में बात करते हैं, और रूरल एरियाज में भी हम दो तीन तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी खुद की डायलेक्ट है या पड़ोसी की डायलेक्ट है, वो सब मिलजुल कर हम एक नया लैंग्वेज बनाते हैं। तो ये थिएटर में भी ये रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे आपका डांस लाइक मैन में तो तमिल का था, और उसके बाद बिग फैट सिटी में आपका हरियाणवी डायलेक्ट भी आता है, थोड़ा पंजाबी भी आता है। व्हेन दैट गाय राइट हिज मम्मा की मम्मा मेरी चिच्ची उंगली टूट रही है एंड ऑल दैट, सो पंजाबी सो आपने खुद इस पे काम किया या फिर मतलब आप उस सराउंडिंग में आए तो यू गॉट हेल्प फ्रॉम समवन? हाँ, मैं तो एक जैसे कि आप समझो कि मैं एक नाव चलाता हूँ, तो एक भाषा यहाँ से वहां लेता हूँ और वहां की भाषा यहाँ ले आता हूँ। तो मेरा that is what I mean by being rootless. So it's more like I'm not so earthy, but I'm more fluid like water. तो आई थिंक जैसे आपने सही बताया कि डांस लाइक अ मैन या तारा में देखिए तो उसमें कन्नड़ भाषा भी इस्तेमाल की है मैंने, और उसके साथ ही मैंने यूरोपियन म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक भी इस्तेमाल किया है। तो और बिग फैट सिटी में, क्योंकि बम्बई की स्टोरी है, यहाँ हर जगह से लोग आते हैं, तो उसकी जो लाते हैं बम्बई में, वो दिखाना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति लाते हैं, और एक जो अर्बन मेल्टिंग पॉट है जो बम्बई को बुलाया जा सकता है, उसमें हर तरह की संस्कृति है जो मिलजुल कर कुछ नया ही बनता है। तो उसकी वजह से वो लगता है मुझे मेरा भी है और किसी दूसरे को लगता है उसका भी है, हो सकता है। हाँ, इनिशियली जैसे इफ इट इज अ प्योर इंग्लिश थिएटर देन इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग टू कनेक्ट ईच एंड एवरीवन। बट यहाँ पे कुछ लोगों को हाँ, वो भी है कि प्योर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज भी प्योर नहीं है, वो भी बदलती आती रहती है, और जो इंग्लिश हम यहाँ बोलते हैं वो भी एक तरह का प्योर नहीं है। अगर आप क्वींस इंग्लिश को देखिए, आप की महारानी को देखिए, वो भी कुछ गलत बोलती हैं इंग्लिश में कभी कभी। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये प्योर है। तो वो प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, हमारी संस्कृति में जगह नहीं है, इसलिए ये जो कास्ट सिस्टम है, जहां उनका बेसिस है प्योरिटी, अगर हम डीएनए टेस्ट से जांच करवाए कि हमारी ओरिजिन्स क्या है, तो हम चौंक जाएंगे कि हम जितना हम अपने आप को प्योर समझते हैं उतना है नहीं। हम कि हम मिलजुल गए हैं बहुत साल पहले। अगर प्योर चाहिए तो हम सब अफ्रीका से आए हैं, दैट इज द origin of mankind. In that sense we're all related in some way, and I think language is just a representation of who we are. This concept of purity has not existed for a very very long time. कि ये जो शुद्धता हम बोलते हैं कि शुद्ध हिंदी में बोलिए या शुद्ध इंग्लिश में बोलिए या शुद्ध मराठी में बोलिए, तो ये एक जीवित भाषा नहीं होती है बाद में, क्योंकि जो शुद्धता हम बोलते हैं वो असल में नहीं है। हम सब एक तरह के हम प्राइमरी कलर्स नहीं है, हम सब सेकेंडरी या टर्शरी कलर्स हैं, कि जो प्योर कलर्स हैं। हम सब में एक शेड या एक रंग और भी है, एक ही रंग के नहीं है हम।
अच्छे सर, आपका जो था स्टार्टिंग पॉइंट वाज गुजराती म्यूजिकल, उससे आप इम्प्रेस हुए थे और आफ्टर दैट यू डिसाइडेड कि थिएटर में जाना है। तो थिएटर फर्स्ट और महेश दत्तानी ड्रामेटिक्स, इनमें से क्या फर्स्ट आप लाकर रखते हैं? मैं एक रंगकर्मी हूँ पहले, कि मुझे थिएटर बनाना अच्छा लगता है। तो मेरी शुरुआत हुई थी बैक स्टेज और मुझे बहुत आनंद आया कॉस्ट्यूम्स को सही तरह से लटकाना और कौन से सीन में कौन एक्टर कॉस्ट्यूम पहन रहा है, उसमें बहुत ही मजा आता था। जब मैंने शुरू किया, जब मैं 16-17 साल का था, तो वो एक है कि अगर हम प्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, शुद्धता को हम एक सामना कर रहे हैं कि शुद्धता नाम नहीं है, तो हमारे आइडेंटिटी भी थिएटर में अलग अलग हो सकती है। अगर आप एक्टर हो तो ये नहीं कि आप एक्टर की ही पैरामीटर्स में आपकी दुनिया है, क्योंकि आपकी दुनिया जुड़ी हुई है सबकी, नाटककार की, डायरेक्टर की, को एक्टर्स की, सीनिक डिजाइनर्स की, सेट कंस्ट्रक्शन की, जो लोग आते हैं जो स्टेज की सफाई करते हैं शो के पहले, उनसे भी आप जुड़े हुए हैं। तो जब ये एक आपको होलिस्टिक, ये एक पूर्णता आपको समझ में अवेयरनेस आएगी, तो मेरे ख्याल से आप बेहतरीन एक्टर या बेहतरीन प्लेराइट बन सकते हैं। मीन्स बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ये कलेक्टिव आर्ट फॉर्म तो है ही, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइड से लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ आते हैं विद देयर ओन क्वालिटीज, ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसके साथ आप जो ऑडियंस भी है, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो भी डिफरेंट उससे है, सिमिलरली ऑडियंस। तो वी हैव टू एस्टैब्लिश अ कनेक्ट, दैट्स व्हाई वी नीड अ फ्लो ऑफ लैंग्वेज और फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज, और उसमें एक इनवाइट करने की क्वालिटी जो होनी चाहिए, बेसिकली वही है ना? अच्छा, अभी किसी ने पूछा, सही है सर यहाँ पे नमित इज आस्किंग अ क्वेश्चन, प्लीज टेल अस अबाउट द जर्नी ऑफ राइटिंग फाइनल सॉल्यूशन। ओके, फाइनल सॉल्यूशंस मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ पे आया था, क्योंकि जो नाटक मैंने उसके पहले लिखे थे, जैसे कि डांस लाइक अ मैन या तारा, वो बहुत ही एक फैमिली के अंदर जो ड्रामा होती है, इट वॉज लिमिटेड टू माई वर्ल्ड व्यू के एक अपर मिडिल क्लास सेटिंग है, ड्राइंग रूम का सेटिंग है। तो जब एलिक पदमसी ने मुझे बोला कि अभी ये तो बाबरी मस्जिद के पहले की बात है, उन्होंने मुझे बताया कि पार्लियामेंट में ये चर्चा हो रही है कि बाबरी मस्जिद वो एक हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है और ये हटाना चाहिए। तो मुझे पहले तो मैं डर गया कि ये तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, मैं कैसे इस पर नाटक लिख सकूं। मैं तो कुछ 30 साल का था तब तो मैंने बोला कि मुझसे नहीं होगा ये। और आप समझिए, आपको शायद पता नहीं, ये जमाना था जब सेल फोन या इंटरनेट नहीं था, तो रिसर्च के लिए बहुत बहुत टाइम लगता था हमको। हमको ट्रैवल करना पड़ता था, किसी को जिनके पास तजुर्बा है उनसे इंटरव्यूज लेने का, और बहुत बहुत ही कठिन। तो मुझे 2 साल लगे फाइनल सॉल्यूशंस लिखने में। तो मैं बहुत आभारी हूँ एलिक पदमसी से कि उन्होंने मुझे ये काम दिया, और ये काम द्वारा मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट आई ब्लूम्ड। मैं कलाकार
कलाकार मैं खिल गया. I really bloomed as an artist. So to me, that was a turning point. And to answer Namik's question as to how did that come about, it was actually an improvisation which his students did at J.B. Pettit College. In the improvisation, it was two Muslim boys who were running away from a riot, and they are sheltered by a Hindu family. उतना था इम्प्रोवाइजेशन में, और बहुत सारी चीजें आई इम्प्रोवाइजेशन में. तो मुझे ये देखकर लगा कि ये मेरा जो कंफर्ट जोन है, टॉकिंग अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद इन अ फैमिली और सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा, मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ. तो तब से मैंने रिसर्च करना शुरू किया. बहुत सारी चीजें, अगर आप नाटक जानते हैं, जैसे कि जावेद का वो जो ह्यूमिलिएशन है, उनका अपमान जब वो क्रिकेट खेलता है और गेंद ब्राह्मण के घर में गिरता है और वो अंदर जाता है गेंद को लेने के लिए और उसका अपमान होता है, ये सब सही घटनाएं हैं जो मैंने सुनी है. और जो एक मैसेज है, we were also barred from performing final solutions in our college IIT Delhi last year because of external pressure. तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है जो शक्तिमान जी ने बताया है कि आज भी 30 साल बाद भी ये एक पाबंदी लगाई जा रही है कि इसके बारे में हम बात चर्चा नहीं करेंगे. तो क्यों ये मालूम नहीं है. और जो घटनाएं अभी हुई है, ये जो Citizenship Amendment Act and kind of backdoor way of marginalizing further those who are already marginalized, things haven't changed that much. कि ये जो हमारी एक तरह की जो एक सड़ावट फैल गई है संस्कृति में, वो हमको खा जाएगी. हम सब सड़ जाएंगे अगर हम कुछ नहीं करेंगे. तो ये बहुत जरूरी है कि हम चर्चा करें. I think it starts with talking about it. It starts with sharing of stories. ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, ये political party सही है, ये गलत है. ऐसा नहीं है. Political party is just a representation of who we are. Right? तो हम अपने आप में we need to examine कि what is this nature of prejudice? What is it that makes us hate someone so much that we're willing to even see them dead? कि ये कैसी हैवानियत हमारे में आ गई है. और I firmly believe in the principles of Buddhism के हैवानियत और बुद्धा enlightenment हम में ही है. We are evil and we are good. ऐसा नहीं है कि बाहर की कुछ चीजें हैं. तो हम कर्म से हमारी जो enlightened self है, वो हम आगे consciousness में ला सकते हैं. And this is where theater can help a great deal. I've often asked, what is the purpose of theater? Is it, messages or entertainment or what? This is 40 साल से मैं सुन रहा हूँ ये argument. So I think theater is, in a way, it is about healing. It's not about messages, but it is about really the most simple definition and the most cliched one is the truthful one. It is a mirror for man. जो इंसानियत को एक आईना जो है वो दिखाती है, वो सही बात है. ऐसा नहीं है कि ये तो घिसा हुआ लाइन है. नहीं, इसमें कुछ दम है. We just need to rethink and revisit that line. Exactly.
सर सेम उससे जुड़ा ही हुआ है ये. योर मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट एज अ डायरेक्टर, which genre are you frightened to do? What am I frightened to do? Okay. Yes, I have to say that throughout my theatre career, I've been running away from doing absurd theatre. Right? Gotcha. Every oh, where did you go? Oh, okay, you're still there. Yeah. Actually, Okay. I thought you connection. disappeared. Okay. Yeah. Well, I think to me, absurd theatre was very much a European philosophy. Okay, you know, nothing really happens, and we're just pawns in the disorder of things, and you know, we don't really matter much. We don't really exist. So, I think Camus started that, and then of course Beckett and all. So I see that as a very European movement. For me to, because I'm so interested in cultural cross-pollination, because I feel that that's what society is about today. I think it doesn't fit into my scheme of things. But having said that, I have to confess I don't understand absurd theatre. I've read, you know, Godot and Rhinoceros. I enjoy productions. You know, when they're well done, they're very, very engaging. But at the end of it, I say, okay, you know, I could have summed that up in one line. Existentialism, you know, who am I, what am I, and what am I doing? So I think to me it's a kind of no exit, if I may use a title from Sartre. That's what, if the question was what is challenging or what am I afraid of doing, I would say it's the theatre of the absurd. Absurd, yeah. Even waiting for Godot was in our course. And till then, I did it again and again. Every time, whenever I was going through it, so I was relishing it. But in the end, it was like a dead end. Right, So yeah. because of their culture, because they were going through that kind of type of era, Second World War and all that, and that's why there was nothing. Yeah. What to do, करना क्या है, आगे के लिए क्या है, किसका इंतजार कर रहे हैं. Even Godot is not clear whether it is God or some person Exactly, or what. yes, absolutely. So, of course, it's open to multiple interpretations, and it's good, it's complex, and, you know, it's a great matter of study. But personally, I'm afraid to do something as absurd as that. Yeah. जिसको ऑडियंस में जिसको जो जैसे लगे वैसे लेकर चले जाओ अपने साथ. It's like that. You, as per your mind, nobody is telling you, no answer, nothing, open-ended kind of thing. Speculations के साथ you go with it. Right. Even criticism में भी when we do it, तो पता नहीं है हमको भी कि करना क्या है. Exactly, yeah. Well, in a way, it's liberating because it's open to interpretation. Then you can give your own interpretation to it, right? So I think it is what it is. Yeah. Great. Yes. Some more questions. Yeah. Sir, my question, others are also asking, but one of my question is, which I wanted to ask you after that class also. Actually, the thing is कि मैंने तारा भी पढ़ा, वो उसके बाद आपका डांस लाई का मैन भी हो गया. अच्छा, अभी ये जो लेटेस्ट मैंने देखा था, वेयर डिड आई लीव माई पर्दा, जो शकुंतला के ऊपर था. तो मतलब मुझे ये देखकर लगा, बीइंग अ मेल, इट्स नॉट अबाउट जेंडर वगैरह, मैं वो नहीं जानना चाहती उसके डिटेलिंग में, बट मेल होते हुए भी एक फीमेल की अंदर की फीलिंग्स को समझने के लिए क्या आपको डांस का नवरस हेल्प किया या व्हाट वाज दैट, जो मुझे लग रहा था कि नवरस, दैट्स व्हाई, मतलब दैट इज माय डाउट पॉइंट. और नेक्स्ट इज कि तो क्या था वो, क्योंकि इतना तो एक फीमेल भी फीमेल के बारे में नहीं समझ सकती या जान सकती या बोल सकती
जितना कि आपकी पेन ने कह दिया. Okay. Well, जैसे मैंने बताया था पहले कि आई एम मोर ऑफ अ ferryman, कि जैसे कि संस्कृति भी हम एक melting pot में लाए हैं. I think even gender can be seen as a part of that melting pot. कि जितना हम difference समझते हैं मेल और फीमेल में, उतना शायद है नहीं. कि biologically we are different, and men and women are the binaries. तो उसके एक पूरा range होता है from men to women, right? And these are just binaries. So I think when I write, I think I look for the humanity of the character first. And I think for me, and I feel very flattered when women tell me that my female characters are very strong and they can relate to them. I feel very validated that what I believe in is true, that the difference in us, like you rightly pointed out, the Navras, that is something timeless and universal, our experiences. Right? And I think it is circumstances that make us culturally men and women. It could be, and circumstances can break us from our constructed gender as well. So I think it's just a question of unlearning rather than learning. You unlearn that you're a man. And you unlearn everything that goes with the male perspective. And if you can do that, of course, it's very difficult. I can't unlearn everything. Some things are just ingrained. But we try. And I think in that attempt, some art is created which can have an aesthetic experience similar to the rasa experience. Okay. अच्छा सर, now we will come to the main topic. वैसे तो बहुत सारे questions हैं, then मुझे आपका वो भी उस पे भी बात करनी थी. इसके ऊपर जिसमें आपने कहा था it was like where there is will. उसके ऊपर भी कि it is a laughter which you dream of. Yes. It is based on that. है ना? Yeah. तो वो आपने एक बार बोला था कि वो ऐसे ही हो गया था. मैंने तो सिर्फ एक कल्पना की थी and it was created, and when created, so you were also surprised with the reaction of your friends and co-artists. Absolutely. So, हाँ, तो वो कैसे हो गया, मतलब आपने वो कैसे सोचा था या उसका सीड कैसे पड़ा था? Because whenever we are writing, so उसका कोई ना कोई बीज कहीं ना कहीं से होता है, whether it is a character, whether it is a plot, और या कोई एकदम से पूरी कहानी ही हमारे दिमाग में आ जाती है. तो क्या चीज है इसके कॉन्टेक्स्ट में भी और नॉर्मल राइटिंग भी? नॉर्मल आप कोई सा भी प्ले लिखते हैं? हाँ, well, Where There's a Will, ये मेरा पहला नाटक था जो मैंने लिखा था when I was 26 or 27. तो मुझे ये उस टाइम में I was assisting my father in his business. तो मेरा father का assistant था. I used to carry his briefcase and drive him to his clients' offices and make sure when clients came to his office they would get tea and everything. So I was very much my father's assistant while I was learning the business, which I never learned. So I think a lot of time went in waiting for client meetings and things in that time. And for me, it was just a moment of drifting into this imaginary world and looking at my father and the kind of intelligence he had in dealing with people, which I clearly lacked. And so I started this play about this father who was very experienced and very
sort of knows it all, and this sort of very naive, stupid son who doesn't know anything, you know. So that's where the comedy came from. And the rest, of course, was imagination, and you always imagine things to make it. Like one person said, do you imagine things to make it more exciting? Yes, drama is about making things exciting. That's how it happened. And I was quite surprised at my actors' reaction to the play. When we first read it, I just had a dozen pages, and it wasn't even the end of the first scene. And they said, why don't you complete this play? And I said, yeah. And there was a major festival that was happening, a theater festival, and we had to submit our entries. And so I submitted this play, and it wasn't even written. So I think my playwriting journey began more out of necessity because I was forced to write a play. I was compelled to do it because I'd committed to a deadline. So that's how it happened. And it's the only, maybe Big Fat City can be classified as a comedy, but When Is Will is the only comedy I've written. After that, the plays got a little more darker. I don't know why. That was an aesthetic choice I made. But Dance Like a Man, which was my second play. And then further with Tara as well. And then it moved to Bravely Fought the Queen, Final Solutions. Okay. Okay, sir. So, if we have to make a write-up और एक नाटक बनाने के लिए for the purpose of performance, तो उसको शुरुआत कैसे की जाए? कुछ लोगों की, जैसे हमारे इसमें मेरे स्टूडेंट्स की अपने भी है, कि उसकी शुरुआत कैसे की जाए, कि हमारे दिमाग में बहुत आइडियाज हैं, बहुत कुछ है, लेकिन when we pick up the pen, we are not able to jot down it. तो उसके लिए कोई सिंपल फॉर्मूला आप बताएंगे? सिंपल फिर उसके बाद हम फॉर्मूला परफॉर्मेंस पे आए. Okay, all right. अच्छा, ठीक है. It's okay. Let me see if I can put it as simply as I can. कि जब हम नाटक लिखते हैं, तो हम कौन सा काल का इस्तेमाल करते हैं, right? कि see, storytelling is of two tenses. उसमें दो काल हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं. कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कल आपने क्या किया, तो आप स्टोरी बताएंगे, लेकिन आप बताएंगे कि मैं कल सवेरे वहां गई थी, बंगाल मार्केट गई थी, वहां मैंने ये खाया और वो मिले थे वहां. There you are. Can you hear me? Yeah, sir. Now it was buffering. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So we were in the past tense, भूतकाल. Yes. Bhutkal. Yeah. So, because we tell the story in the past, जब हम भूतकाल में बताते हैं एक कहानी, तो जो कहानी सुन रहा है, उनको मालूम होता है कि इनको मालूम है कि अंत क्या है, कि ये कहानी में क्या हुआ. अगर मैं आपसे पूछूं कि कल आपने क्या किया, तो आप बताएंगे मुझे भूतकाल में, तो आपको मालूम है कि क्या हुआ, राइट? अगर वही कहानी आप प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, वर्तमान काल में, तो मुझे ऐसा इल्यूजन, फिर भी आप कहानी का अंत तो आप जानते हैं, राइट? लेकिन आप बोलेंगे मैं अब बंगाल मार्केट पहुंची हूं और मैंने सामने दुकान देखी, गोलगप्पे की खाने के लिए लाइन लगी थी और उसकी खुशबू ऐसी आई कि मैं रुक गई वहां. मैं खाऊं या क्लास पे जाऊं, मैं संकट में पड़ गई, राइट? तो अभी आप जो वही स्टोरी जिसका अंत आप जानते हैं, लेकिन जब आप वर्तमान काल में बोलेंगे तो सुनने वाले को लगेगा कि अब क्या होगा, क्योंकि वो भी वही एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस है कि जब हम नाटक करते हैं तो
तो हमको तो जो नाटक कर रहे हैं उनको तो मालूम है कि अगला क्या सीन आएगा और अंत कैसे आएगा, लेकिन जब हम वर्तमान काल में करते हैं तो ये एक माया बनती है कि ये अब हो रहा है। तो माय एडवाइस जो कहानी नाटक लिखना चाहते हैं कि आप वर्तमान काल में कहानी बोलना एक अभ्यास कीजिए। तो जितना आप वर्तमान काल में रहेंगे उतना आपको आसान होगा। पूरा जो स्ट्रक्चर, टेक्निक वगैरह वगैरह वो सब अपने आप आ जाएगा। आपको सिर्फ वर्तमान काल में रहना है आप अपनी स्टोरी के साथ। ओके, तो प्रेजेंट में होना है। अच्छा, फिर जो एक नाटक लिखा गया होता है, एक राइटर का लिखा हुआ नाटक होता है, और एक नाटक फॉर परफॉर्मेंस किया जाता है। जब हम सीन्स लिखते हैं एक एक को, तो उसकी डिटेलिंग होती है। परफॉर्मेंस में उसकी डिटेलिंग का लिखा होता है। हाँ, नाटक तो परफॉर्मेंस के लिए ही लिखा जाता है। आप देखिए, पहले हम शेक्सपियर के नाटक की कविता को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन लिखा तो उन्होंने स्टेज के लिए, उनके एक्टर्स थे, उनके स्पेशल एक्टर्स के लिए पार्ट्स लिखे थे उन्होंने, या कोई राजा ने उसको कमीशन किया नाटक लिखने के लिए, तो उनके लिए लिखा था नाटक। तो वो सब लिखते थे परफॉर्मेंस के लिए ही। तो आई थिंक ऑल प्ले राइटिंग इज रिटन फॉर परफॉर्मेंस। कि आप अभिज्ञान शकुंतलम भी देखिए कि इतनी सुंदर कविता भी होगी। मैंने संस्कृत तो मैं जानता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो बहुत ही स्टेज वर्दी नाटक है कि पूरा वातावरण, जो रस के जो भी सामग्री है वो सब उसमें है। तो वो सामग्री को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे एज अ डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर, वो एक क्रिएटिव चैलेंज बनता है। तो जो रस है दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द राइटिंग। जैसे नाट्यशास्त्र में भी किया है कि ये सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव से, वो सब मिलकर रस तो आएगा ही, राइट। तो वो एक शुरुआत होती है राइटिंग से। वहीं से जो एनकोडिंग है, पूरा जो एक्टिंग टेक्निक है या डायरेक्शन टेक्निक है, जो भी स्टेज टेक्निक है, वो एक तरह का डिकोडिंग है। जो लिखा गया है उनको कैसे हम वर्तमान काल में काल और स्पेस के साथ हम कैसे ये कहानी कह सकते हैं, वो एक क्रिएटिव चैलेंज बनता है। जैसे अभी आपने उसका वेयर डिड आई लीव माय पर्दा, शकुंतला का अभिज्ञान शकुंतलम को बेस बनाकर ही लिखा था। तो उसके अंदर आपने, मतलब वो एक रचना थी ऑलरेडी, अलग अलग टाइप से थी वो, पोएट्री फॉर्म में भी थी और वैसे भी प्लेस भी उस पे बहुत ज्यादा लिखे गए थे। उसके ऊपर से एक नया एक नाटक तो आपने अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएशन से क्रिएट किया, अपनी सब चीजों से, और या फिर जो सोसाइटी में देखा वगैरह उसके ऊपर, और एक जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश रचना है उसको बेस बनाकर लिखा। तो उसमें और इसमें जो एक ओरिजिनल ये वाला हुआ आपका, जो ओरिजिनल और जिसे बोलेंगे ऑर्गेनिक थॉट हो गया, उसमें और एक एस्टैब्लिश्ड में, उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा या क्या चैलेंजेस सॉर्ट ऑफ लगे? क्योंकि कई बार हम लोग करते हैं ना, किसी की कहानी उठा ली, छोटी सी कहानी उठा ली, जैसे एंटन चेखव की एक कहानी थी निनकॉम्पो, बहुत छोटी, इट इज जस्ट हाफ द पेज है वो, उसका ही हम लोगों को 30 मिनट का नाटक बनाना है, 20 मिनट का नाटक बनाना है। तो वो एक बेस तो हमको मिल गया, बट उसके साथ जो डिफरेंट चैलेंजेस है, तो वो आपके केस में कैसे रहे? अच्छा, पहले तो एक चीज है कि वेयर डिड आई लीव माय पर्दा, that was based inspired from Zora Segal's life.
तो उसमें it is not an adaptation of Shakuntalam. ये कहानी में she was known for her role of Shakuntala in Avighn Shakuntalam. तो उससे जो scenes मैंने Shakuntalam से लिए हैं, that is to do with memory, because the play is about memory, भूल जाना या याद करना. वो that is the thematic connection between my story and the story of Shakuntala. जो connection नहीं है Shakuntala में मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, because it's a play within a play. कि ये story है एक actress की जो 80 साल की उम्र की है और उन्होंने बहुत सारी थिएटर में जिंदगी गुजारी है. तो उनकी जो memories हैं शकुंतला खेलने की और उनकी बहन की और भूल जाने की, क्या हुआ उनके साथ, तो वो सब it's all connected with the theme of memory and remembering. कि जब हम याद करते हैं तो एक तरह का एक resolution हो जाता है हमारे अंदर कि जब हम सही याद करते हैं, क्योंकि याद करना भी एक फिक्शन है. जो हम याद करते हैं वो शायद हुआ नहीं, और जो हम याद करते हैं वो शायद अर्ध सत्य ही हो. तो वो एक फ्रैगमेंट है सच्चाई का. तो I think that's what the play was about. I just felt that Avighn Shakuntalam was a very good play. Also, it was very interesting that Zora Sehgal was involved in production of Shakuntala, but she was not cast as Shakuntala. Her sister was cast as Shakuntala because people felt she was the more attractive one. And that's something which, of course, Zora, I mean, all this is from her biography. She had some wonderful, she was very she was a very mature woman, and she used to say things like, when she met a handsome young man, she says that, I'm meeting you now when I'm old and ugly. Where were you when I was young and ugly? So she had these very witty lines at her own expense, which I thought made her as beautiful as she was. So in that sense, in that sense, it's very much a tribute to Zora Sehgal, the play Where Did I? Although it's very fictional, it's completely fictionalized. It's not her story. The things that happen in to Nazia in Where Did I Leave My Parda? It's completely different to what Zora went through in as from what I can see from her biography close up. Yeah. Okay. And sir, when your plays are being translated, कोई भी करता है दूसरी language में, and you go and watch, if you have watched, so can they do the justice with the original one? Well, क्योंकि ट्रांसलेशन में कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा ना, लैंग्वेज का एक एसेंस तो आता ही है. फर्क होना ही चाहिए. अगर फर्क नहीं है तो वो रुक गई है, सड़ गई है. I think that is what I mean, that we need to break this concept of purity, that it doesn't exist. कि everything is a translation. कि हम जो बात कर रहे हैं वो कोई अलग नजरिए से भी समझ सकते हैं लोग, और ये भी सही है. ऐसा नहीं है कि ये गलत है, because and especially in the theater we deal with multiple perspectives. कि अलग अलग नजरिया दिखाना वो हमारा धर्म है. थिएटर में हम क्या करते हैं, अलग इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, सब कैरेक्टर्स के अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं. तो वो जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं वो हम थिएटर में प्रेजेंट कर सकते हैं. सिनेमा में पॉइंट्स ऑफ व्यू पर ज्यादा महत्वपूर्णता है कि एक पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं. लेकिन आप देखिए नाटक, प्रोटैगनिस्ट तो होगा ही, लेकिन जो भी पात्र हैं उन सबके एक पर्सपेक्टिव्स नजरिए होंगे जो नाटककार और कलाकार को
truthfully represent करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि that is at the core of our art. It is the art of multiple perspectives. So that is must. Yes, that's a must. So I think आपका है कि is it as good as the original? No, if you say as good as, no, but it is good. It could be good and different, right? Like हम अभी Beckett के absurd plays आप study कर रहे हैं academically. हम Bertolt Brecht के plays, Chekhov के plays कर रहे हैं. वो सब हम रशियन जानते हैं, हम फ्रेंच जानते हैं, शायद नहीं. हम उनको पढ़ रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में, और हम इनको फिर से ट्रांसलेट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं हिंदुस्तानी में या हिंदी में या बंगाली में या कन्नड़ में. तो वो एक वो जिंदगी की तरह ही है. तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स is, to me, is a wrong symbol. I think theatre is more fluid, so I think the element is water more than earth, if you ask me. That's right. Yeah. And so क्योंकि एक कहावत है कि it is impossible to put in the river twice, because it is the water, either the water has changed or your place has changed or your foot has changed. Yeah, I write it in the same water. Yeah, I like this sound all the time. That's true. Okay, sir. When you see the picturization of your plays, like that was Shabana Azmi play, no? Dance Like a Man, Morning Raga. Like, so, it's बिल्कुल totally new. Morning Raga, मैंने फिल्म भी देखी और डांस लाइक अ मैन प्ले देखा. तो एक डिफरेंट, एक मेरे को तो अलग से महसूस हुआ कि एक अलग कोई प्रोडक्ट ही रखा हुआ है, एक अलग से रखा हुआ है. तो आपके तो इट इज आप ही की क्रिएशन है, तब आपको कौन से वाला अच्छा लगने लगता है? जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा लगता है, क्योंकि you know, as theatre people and as filmmakers too, I'm sure we live so much in the present moment. Hang on. I know. And you're him. As good as, no, but it is good. It could be good and different, right? Like हम अभी Beckett के absurd plays आप study कर रहे हैं academically. हम Bertolt Brecht के plays, Chekhov के plays कर रहे हैं. वो सब हम रशियन जानते हैं, हम फ्रेंच जानते हैं, शायद नहीं. हम उनको पढ़ रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में, और हम इनको फिर से ट्रांसलेट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं हिंदुस्तानी में या हिंदी में या बंगाली में या कन्नड़ में. तो वो एक वो जिंदगी की तरह ही है. तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स is, to me, is a wrong symbol. I think theatre is more fluid, so I think the element is water more than earth, if you ask me.
That's right. Yeah. And sir, क्योंकि एक कहावत है कि it is impossible to put your foot in the river twice because it is the water, either the water has changed or your place has changed or your foot has changed. yeah, I like it. It's in the same water. Yeah. Yeah, I like this this comment all the time. That's true. Okay, sir. When you see the means picturization of your plays, like that was Chetana Azmi play, no? Dance like a man, Morning Raga, like so. इट्स बिल्कुल टोटली न्यू मॉर्निंग लगा मैंने फिल्म भी देखी और डांस लाइक अ मैन प्ले देखा तो एक डिफरेंट एक मेरे को तो अलग से महसूस हुआ कि एक अलग कोई प्रोडक्ट ही रखा हुआ है एक अलग से रखा हुआ है तो आपके तो इट इज आप ही की क्रिएशन है तब आपको कौन से वाला अच्छा लगने लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा लगता है क्योंकि you know as theatre people and as filmmakers too I'm sure we live so much in the present moment so unless you're excited about the work you're doing in the present I think that is so if you ask me which is your favorite it's the piece that I'm working on now I think that becomes your favorite then. Yeah. Oh, there's a question on approach for freshers while writing a script for the first time. Yes. So I think first time तो सब लोग लिखते हैं कहीं कभी ना कभी first time तो लिखा ही है. I think शुरुआत होती है आपको ओम श्री गणेशाय नमः बोलना है या जो भी बोलना है या कुछ नहीं बोलना है शुरुआत कीजिए क्योंकि ये स्विमिंग की तरह है या बाइसिकल राइडिंग अ बाइसिकल की तरह है ये एक क्रिया है जो जितना आप करेंगे उतना आप सीखेंगे अगर आप सीख सकते हैं कि यू नो पानी में गिरने से कितनी डेंसिटी कम है मीडियम क्या है और कैसे हम तैर सकते हैं बॉडी का एंगल क्या होना चाहिए वो सब हम पढ़ सकते हैं राइट लेकिन जब तक आप पानी में जाएंगे नहीं आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं तो वैसा ही है कि ये बहुत ही एक डर हो जाता है कि मैंने नाटक लिखा ही नहीं है तो शुरुआत कहाँ से करूं तो आई थिंक ट्रस्ट योरसेल्फ क्योंकि आप लिखना चाहते हैं इसका मतलब है कि आपके अंदर एक कहानी है जो फूटने के लिए तैयार है तो वो बीज तो है तो जब तक आप उनको कलम का तो ओल्ड फैशन कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्सेप्ट है अभी जब तक आप अपने लैपटॉप के सामने बैठेंगे नहीं और वो कीज टैप नहीं करेंगे आप यू आर नॉट अ राइटर क्योंकि ये एक हम ये गलत बोलते हैं कि आई एम एन एक्टर और आई एम अ राइटर राइट आई थिंक वी हैव टू थिंक ऑफ द डूइंग पार्ट ऑफ इट कि मैं नाटक लिखता हूँ राइट मैं अभिनय करती हूँ राइट आई थिंक दैट शुड बी द फोकस बिकॉज एक आई एम अ राइटर मैं एक नाटककार हूँ वो एक it's to do with an identity of the ego, which sometimes obviously it is required. The ego has to be sort of strengthened and affirmed. But I think the more you focus on the doing of it, कि मैं नाटक लिखता हूँ, मैं नाटक डायरेक्ट करता हूँ, मैं रंगकर्मी हूँ. I think ये जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ट्रेडिशनल वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जो शायद संस्कृत से जुड़े हुए हैं तो उसमें एक गहराई है एंड द फोकस इज ऑलवेज ऑन द डूइंग राइट जैसे कि आप समझे कि इंग्लिश में हम ऑडियंस बोलते हैं now audience is the word that comes from audio
जो सुनते हैं वो ऑडियंस है, राइट? या तो हम स्पेक्टेटर बोलते हैं, स्पेक्टेटर इज टू डू विद द विजन, कि जो देखते हैं वो स्पेक्टेटर है। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, by calling them रसिक, राइट? जो रस अनुभव करते हैं वो रसिक है। तो I think there's so much, this again, I believe in the line that if you want new ideas, read old books, and if you want old ideas, read new books. तो ये एक कनेक्शन है, जैसे कि हम लैंग्वेजेस की कनेक्शंस के बारे में बात करते थे. There's a question from Arjun Nair. Is there a difference between directing professional actors and theatre students? Arjun Nair एक बहुत ही talented कलाकार है, जो मैंने उनको सिखाया और डायरेक्ट भी किया है. Arjun, I think as a director, my job is to treat Yes, can you hear me? That was expired. Like a lottery for me. Yeah. जैसे हमारे जमाने में कभी कभी थिएटर में बिजली चली जाती थी, and then there was a blackout. So we used to plan कि अगर ऐसा होता है, what should the actors do? Should they freeze there? Should they leave the stage? And where should we pick up and everything? तो अभी ये नया जमाने में नए रूल्स आएंगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे हम. अच्छा, अर्जुन ने सवाल पूछा था कि फर्क क्या है प्रोफेशनल थिएटर एक्टर को डायरेक्ट करने और स्टूडेंट को डायरेक्ट करने में. तो मुझे तो ऐसा है कि जो भी मैं कलाकार से काम करता हूँ, उनको कलाकार की जगह में रिस्पेक्ट पूरी तरह से देने की कोशिश करता हूँ. And I expect them to be like professional artists. और सवाल ये है कि तजुर्बे से क्या हम अच्छे कलाकार बनते हैं या हम मासूमियत से अच्छे कलाकार बनते हैं. मेरे हिसाब से दोनों जरूरी हैं, दोनों बहुत जरूरी हैं. कि जैसे हमको तजुर्बा मिलता है, हम अपनी मासूमियत तक खो जाते हैं. लेकिन जैसे हमने देखा, हम वर्तमान काल में कहानी बताते हैं, ये हमारा धर्म है. तो वर्तमान काल में मासूमियत की बहुत अहम होती है, क्योंकि इसी में हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा. अगर हमको वो सवाल नहीं आता है, तो अगर हम जानते हैं तो बहुत बोरिंग नाटक होगा कि हम कहीं नाकामयाब रहें. तो इसीलिए जो अर्जुन ने सवाल पूछा वो बहुत जरूरी है कि जो नए कलाकार हैं उनकी मासूमियत से मैं डायरेक्टर के हिसाब से फायदा उठाऊं, और जो एक्सपीरियंस्ड कलाकार हैं उनका तजुर्बा तो है ही, लेकिन उनको मासूमियत की डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता हूँ. तो ये एक दोनों का एक विवाह है, मासूमियत और तजुर्बे का. Okay. Ajay sir, one more question is there. While writing, how to avoid over explanation and be concise? Very extremely important question. Very important question, because especially when I'm reading
students writing, the first thing I look for is in the exposition, जो पहले शुरुआत में वो कितना explain कर रहे हैं, कितना हमको बता रहे हैं. जितना ज्यादा बताएंगे उतना मुझे लगता है कि इनको तजुर्बे की बहुत जरूरत है. कि एक अंक का ही जो बात आप कह सकते हैं, तो एक जो दर्शक को एक इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि थोड़ा काम दर्शक को भी करना जरूरी है. वैसे ही रस पैदा होता है कि रसिक को भी एक तरह का एक प्रोटोकॉल है. एंड आई थिंक जो अच्छे नाटककार हैं वो जानते हैं कि इसमें हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम जानते हैं और वो नहीं जानते हैं. तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर है कि हमारे जो नाटक तो हम लिखते हैं डायरेक्टर्स, पहले तो डायरेक्टर्स को पढ़ने के लिए या प्रोड्यूसर को पढ़ने के लिए, और बाद में एक्टर्स पढ़ेंगे और शायद दर्शक पढ़ेंगे. The main thing is that directors and actors should be excited about your work, reading it. Right? That's why you write plays. So I think it's very important to understand that these are extremely creative people, and they are as sophisticated or far more sophisticated than you are, and they are in the privileged position कि जो आपने लिखा है वो एक दूरिया से देख सकते हैं, तो बहुत समझदारी से वो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. तो over explaining is just going to make you look very weak and ineffective. So I think it's very important that you focus on the present tense. वर्तमान काल में आप लिखेंगे तो एक्सप्लेनेशन का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको. सही है. अच्छा सर, एक और होता है जैसे डांस की कोरियोग्राफी होती है, सिमिलरली थिएटर की भी अपनी सब जो हम जिसको ब्लॉकिंग और ये हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ कोरियोग्राफी. ऑब्वियसली दिस इज नॉट लाइक दैट कोरियोग्राफी, बट इट इज ऑल्सो अ कोरियोग्राफी. तो उसके बारे में कैसे हम अपने उसमें मेंशन करते हैं जिससे कि एक लेमैन भी, मतलब इफ ही इज नॉट अ ट्रेन्ड आर्टिस्ट तो वो भी कर सकता है, तो उसको भी वो इजी हो जाए. बिल्कुल, है ना? बिल्कुल. ऐसा ही है कि जो भी अगर प्रेशर आए एक्टर को, तो एक तरह का जो एक्टर की जो मेमोरी है याद करने की, वो सब में है. So I think it just needs to be sharpened a little, and we don't call it choreography. We call it blocking, which is a regular word. But I like to use the word physical action score. So physical action score, आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप धुन सीख रहे हैं. समझिए कि आप एक धुन सीख रहे हैं, तो उनके जो नोट्स का ऑर्डर है आपको वो सीखना बहुत मेमोरी से आप सीख जाएंगे. अगर एक आप 4-5 बार सुनेंगे तो उतना काफी है, आपको धुन याद आ जाएगी. तो I think the physical action score is very similar, that there is a musicality in it. एक रिदम से हम सीख सकते हैं, तो बहुत आसान तरीके से ऑर्गेनिकली एक्टर्स को वो मेमोरी में बैठ जाएगी, अपनी मसल मेमोरी में बैठ जाएंगी. तो फिर उनको उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं होगा. तो वैसे ही जैसे धुन हम सीखते हैं, वैसे ही हम फिजिकल एक्शन स्कोर भी सीख सकते हैं. और फिर
भी जरूरी होता है। जैसे मुझे याद है हमारे क्लासेस के टाइम पे आपने हमको लिखवाया था कि शी विल टर्न टू लेफ्ट, शी विल हैंड इट ओवर एंड टर्न टू राइट, इस तरीके से था। तो वो सब भी मेंशन करना जरूरी होगा स्क्रिप्ट लिखते हुए। नहीं उतना नहीं, पानी का ग्लास उठा रही है, पी रही है, फिर रख रही है, फिर हाँ। उठा रही है, तो वो सब कुछ। अच्छा, लिखने ये एक सवाल भी आया था कि जब हम लिखते हैं क्या हम कल्पना करते हैं कि कैसे होगा, राइट? तो ये एक नाटककार और डायरेक्टर का एक कॉन्फ्लिक्ट है। डायरेक्टर्स बोलते हैं अरे यार ये नाटककार क्यों इतना लिखता है कि ये लाइन पर ये पानी का ग्लास उठा रही है, हम करेंगे, राइट? ये भी सही बात है, ये गलत बात नहीं है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं ऑर्गेनिकली जब आप फ्लोर पे करेंगे अपने टाइम और स्पेस और जो एक्टर का जो नजरिया है। लेकिन नाटककार कभी कभी एक्शन लिखता है, वो कहानी को बढ़ाने के लिए लिखता है। कि समझो कि चेरी ऑर्चर्ड में वो इंस्ट्रक्शन लिखा है कि वो खिड़की खोलते हैं और बाहर देखते हैं अपने बगीचे को, राइट? अब ये बहुत ही जरूरी स्टेज इंस्ट्रक्शन है और कोई बेवकूफ डायरेक्टर ही होगा जो इसको इग्नोर करेगा, क्योंकि पूरा जो वो बोल रहे हैं इट इज इन रिस्पॉन्स टू देम सीइंग द ऑर्चर्ड। वो बोल रही वहां मेरी माँ जा रही है, उनको अपना मरा हुआ बच्चा याद आता है, वो सब चेरी ऑर्चर्ड जो चेरी का बगीचा है वो देख वो सब उनको प्रभावित होता है और याद आता है। और उसके द्वारा हम ऑडियंसेस फिर से हम फ्रीज हो गए। कैन यू हियर मी? Yeah, slow sir buffering. I'll send you once again. I'll send you this. Okay. Just a minute. Just a minute. You're still frozen. Oh, they can hear. Slow, yeah. They can hear me, Just a minute. but you can't. I can't hear you. Yeah, he can hear you, but that too is very slow. So it's oh, they could see me as well. So then it's, I think it's your connection that's probably a little weak because I can't see you. You're just frozen. Just a minute, I opened the door. Maybe Hi, Ankit. there is problem with that. Just a minute, please. Yeah. Okay. So what was I saying? I've forgotten now. Yes, stage instructions. I think they're very important. One playwright said that we do not that the playwright is the only theater artist who is not present on stage, right? And Shiva Vogel said, no, we live in the stage instructions, in the stage directions. That is where we live, right? So I think there is how stage instructions can inform the directors, just as the question about over-explaining and not being concise. As a playwright, you need to be a little careful about not sort of the script with stage business which has no meaning in the storytelling. अगर कहानी को नहीं बढ़ा रही हैं तो आपको वो stage instructions जरूरी नहीं है। लेकिन there's some beautiful instructions which cannot be ignored. जैसे कि Cherry Orchard में है, Arjun also is talking about Cherry Orchard, कि second act में जब वो लोग एक माया रहे हैं, अपना भविष्य उनको दिख नहीं रहा है कि ये ऑर्चर्ड बिक जाएगा और अपने अपने सपने देख रहे हैं, तो दूर से एक तार टूटने की आवाज आती है। ये एक स्टेज इंस्ट्रक्शन है दूसरे अंक में, चेरी ऑर्चर्ड में। तो ये जो
स्टेज इंस्ट्रक्शन है, बहुत बहुत जरूरी है. दूसरा एक है, नाटक के अंत में आता है, जब वो स्टेज इंस्ट्रक्शन है कि फील्स जो घर का जो पुराना नौकर है वो अकेला है और सन्नाटा है और दूर से पेड़ काटने की आवाज शुरू होती है, the hacking of the tree. Now you cannot ignore that stage instruction. It is foolish to do that. क्योंकि पूरी कहानी वहां तक आती है. डॉल्स हाउस में जो जब नोरा उनके पति को छोड़ जाती है, तो जब वो स्टेज से बाहर जाती हैं और जो दरवाजा बंद होने का जो आवाज आता है वो गूंजता है उनके पति के कानों में. एंड आई थिंक दैट इज सच अ fabulous stage instruction that to ignore it would be sheer foolishness. In Mother Courage there is a scream where she opens her mouth to scream, and obviously she can't scream. There's no voice coming out, and that I think is another one that is such a poignant moment in that. तो चलिए, काफी टाइम गुजारा है और आपके फैंस को हम हाँ, तो कोई क्वेश्चंस? I would like to thank you on behalf of all the attendees and Avighn theater group. थैंक यू फ्यूचर में, भविष्य में दोबारा आपसे मुलाकात हो ऐसी कामना करते हुए. हाँ, लॉकडाउन में बहुत अच्छे से रहे. हाँ, थैंक यू. हैप्पी लॉकडाउन में. Thank you, sir. You gave us so much of your valuable time. Thank you. My Thanks pleasure. a lot. Thank you very much. Thank you all for tuning in or signing in. I don't know what the term is for Instagram, but thank you all so much. Thank you very much. And do keep in touch on Instagram, and it'll be nice to hear from you. If you have more questions, I'll be very happy to answer them. So thank you, Suhasini ji. Thank you, Avighn. Very, very kind of you to invite me. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Bye. Bye.